Hello students, welcome to our YouTube channel Success Tree. So here's a very good news for all the banking aspirants that we are launching a free crash course from 3rd of August 2020 for all the banking exams, in which initially we'll be focusing on the preliminary stage of all the exams for banking. So be it your IBPS, PO or clerical, or you can say your RRB, Scale 1 or Office Assistant, or you can say your SBI also, same PO and clerk. So in any of these exams, you all know that they have two stages, which is your preliminary and mains, right? So one is your pre, the other one is mains. So right now primarily we'll be just focusing on the preliminary stage of all these exams, because in the pre stage what is there, all the syllabus and the topics are almost same only, fine. So if you talk about IBPS, PO or clerk, RRB or SBI, the topics and the syllabus remains almost same. Okay, there is just a variation of 1 to 2%, right? Any 2 to 3 additional questions will be there in each of the exams, fine. Rest will be same only. Okay, so initially we will be focusing on the pre stage, then afterwards once we are done with the preparation of pre, we'll start with the mains also, fine. Okay, now what we have to discuss here in today's session is that how you have to prepare the reasoning section for your pre exams. Okay, so let's just see that what will be a strategy to cover up all the topics, how we need to prepare, how we have to focus on the most important topics which have more weightage than the other topics, and how we have to manage our time and how we have to increase the speed and accuracy for this section. Okay, so in today's session I will be discussing each and everything with you. So just please focus here and please just be started, because I just give you a good news also that RRB has already announced vacancies, round about 9500 vacancies. Okay, and it's a very good news after this corona, because students were thinking that it's okay, कोई बात नहीं, free period है, अभी तो corona आ गया, vacancies आएंगी नहीं आएंगी हमें नहीं पता, right? So they were in the mood of कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम next year से prepare करेंगे, but no, RRB has already announced vacancies, 9500 vacancies for Scale 1 and Office Assistant. Okay, so you again have a golden chance that if you start preparing from now only, you will be able to crack this. Okay, then in afterwards IBPS is the target and then SBI again, fine. So let's just see कि अभी हमें कैसे तैयारी करनी है, कि अभी RRB ने तो अनाउंस कर दिया है एंड उसमें आपको पता है कि पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, आपको अगर टोटल पता हो कि कितने मार्क्स का आता है RRB, so it is of 80 marks and out of that 77 was the cut off. So you can see the score, इतना हाई कट ऑफ गया था. So definitely मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए. और आपको ये तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है कि आप यहाँ पे कोई टॉपिक छोड़ जाओ या फिर आप एग्जाम में जाके सोचो कि नहीं ये वाला तो मुझसे नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, या घर से ही आप कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आए तो मैं नहीं करूँगी, बाकी करके चले जाते हैं. नहीं, ये स्कोप नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कट ऑफ देखो 77 है, तो दैट मीन्स आपको पहले तो मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यही है कि आपको 80 के 80 क्वेश्चन करके आने हैं और गलत नहीं कर सकते, फाइन. बट स्टिल थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए. सो आई वुड से कि ठीक है 80 नहीं हो पाते तो चलो कोई बात नहीं, स्टिल गिरी हालत में भी आपको 75 का टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके आपका कुछ बन पाएगा, फाइन. एंड 77 कट ऑफ गई है, सो ऑब्वियसली इतनी हाई कट ऑफ गई है तो दैट मीन्स लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट विल बी ईजी टू मॉडरेट ओनली. ठीक है, ज़्यादातर RRB में क्या होता है, ईजी वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, मॉडरेट वाला थोड़ा सा कम होता है, बट स्टिल ईजी टू मॉडरेट लेवल ही रहेगा आपका इन योर प्री स्टेज. ओके, सो RRB में ये हो सकता है कि इजी वाला चंक ज़्यादा हो, मॉडरेट वाला कम हो, तभी शायद इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है. एंड आपको पता ही है यही होता है कि इजी पेपर आ जाए तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, टफ पेपर आता है तो कट ऑफ भी कम हो जाती है. ठीक है, बट अब इजी तो है, चलो सबसे हो जाएगा, क्वेश्चन सब कर लेंगे, बट बात फिर आ जाती है आपकी स्पीड की. एंड स्पीड
तभी बन पाएगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है। आई विल टेल यू कि हाँ, हम लोग जो ये आने वाले सेशंस हैं उसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें करवाऊंगी, किस तरह से करवाऊंगी, और फिर आपकी क्या मतलब उसके टुवर्ड्स क्या तैयारी होनी चाहिए, वो सारा कुछ अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है हमारी। सबसे पहले हम अपने लेक्चर्स में क्या करेंगे, कंसेप्ट्स हमारे बेसिक टू हाई लेवल सारे ही कवर अप होंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, पहले मैं आपको कंसेप्ट फर्स्ट कराऊंगी। सपोज कोई भी टॉपिक ले लिया, लेट्स से हमने इनइक्वालिटीज लिया, उसमें हमने पहला कंसेप्ट किया, उसके ऊपर बेस्ड मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी। देन सेकंड कंसेप्ट, देन अगेन 2-3 क्वेश्चंस, देन थर्ड कंसेप्ट, देन अगेन 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। सो ऑन करते करते हम एक एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फाइन, अब इससे होगा क्या, आपके सारे कंसेप्ट जितने भी लाइक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक में से वो सारे कवर अप हो जाएंगे। सो कोई चांस नहीं रहेगा कि आपका मतलब कोई भी मतलब कंसेप्ट मतलब छूट गया हो या फिर कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने ना किया हो जो आपको एग्जाम में आ जाए और उसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाए और आप वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम सारा कुछ यहाँ पे कवर अप करेंगे बेसिक से लेके हाई लेवल तक। ठीक है, ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आए वो आपसे ईजिली हो सके, आपको ये ना लगे कि यार ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। सो ऐसा नहीं होगा। फाइन, देन एक लेक्चर में जितने कंसेप्ट्स हमने किए होंगे, 1 आवर का लेक्चर होगा, उसमें जितने भी कंसेप्ट्स आपने करे होंगे उसकी आपको लाइक शाम तक आपको एक PDF मिल जाएगी, PDF ऑफ 25 क्वेश्चंस। ठीक है, विद इन अ डे आपको हम 25 क्वेश्चंस की एक PDF प्रोवाइड करेंगे। अब वो जो आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, अभी आपको आंसर की नहीं मिलेगी। फाइन, जब आपने वो प्रैक्टिस कर लिए उसका एक छोटा सा डिस्कशन मैं फिर से लूँगी आपके साथ। अब डिस्कशन में क्या होगा, मैं आपको उनका मेथड भी एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना था, स्टेप्स क्या थे, एंड फिर आपको आंसर भी बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। कोई डाउट होगा किसी का कि मतलब किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही है, वो आपसे नहीं सॉल्व हुआ होगा, तो वो डाउट्स भी हम साथ के साथ ले लेंगे ताकि कोई भी लाइक आपको मतलब मिस क्लैरिटी ना हो, कुछ भी मिसकंसेप्शन ना हो, कहीं पे भी आप अटको ना, सारा कुछ आपके पास सही मतलब सारा कुछ आपके पास हो कि हाँ ठीक है, क्वेश्चंस भी मुझे सारे पता है, कंसेप्ट्स भी पता है। अब इसी तरह से अगर आप देखो, रोज़ अगर आपको 25 क्वेश्चन हर लेक्चर पे मिल रहे हैं, सो इन ऑल आप कह सकते हो कि 1500 अराउंड क्वेश्चंस तो आप हमारे साथ ही प्रैक्टिस कर लोगे और फिर कुछ अपने लेवल पे भी आप एफर्ट मारोगे, कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करोगे। तो सोचो अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, सारे कंसेप्ट्स की आप क्वेश्चंस कर लोगे, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है। सो देखो, तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। अब मेन बात क्या रह जाती है आपकी, स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो आपकी हो ही जाएगी क्योंकि इतनी तैयारी की होगी, प्रैक्टिस करी होगी आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं आंसर सही निकालूंगी। फाइन, अब स्पीड भी आपकी इसी पे मैटर करती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में ईजी रहेगा, क्योंकि आपको क्विक हो जाएगा कि हाँ मतलब टिप्स पे होंगी चीज़ें, कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, आपको फटाफट दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये चीज़ लगा दूंगी तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो स्पीड भी आपकी तभी बन पाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। फाइन, सो ये रहने वाली है हमारी लाइक अगले 1-2 महीने की स्ट्रैटेजी, जैसे हम ये चीज़ें कर करके आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। अब दूसरी बात क्या आती है, फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे करना है। सो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि टॉपिक्स हैं कौन कौन से। सो देखो, जो प्री का आपका सेक्शन होता है उसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वास्ट सिलेबस नहीं है रीजनिंग का, आप सभी को पता है ना। मेंस में आपके पास और 5-6 टॉपिक्स एडिशनल हो जाते हैं, बट प्री में वो चीज़ भी नहीं आती। जैसे आपका क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ये प्री में बहुत मतलब रेयर ही कभी एक आधा इक्का दुक्का क्वेश्चन आया होगा, वैसे नहीं आता प्री में। ठीक है, तो फिर भी
हम देख लेते हैं जो मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेटली आने ही आने हैं, तो उन्हीं के साथ हम मतलब वर्क करना स्टार्ट करेंगे, उन्हीं की लेक्चर्स हम स्टार्टिंग में लेंगे, उसी पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो एक मतलब जहाँ पे मतलब लीस्ट स्कोप रहता है कि हाँ इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो एंड में हमारे पास जो टाइम बचेगा उसमें वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, सो इनमें से देखो इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 नहीं तो फिर 2 to 3 तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है, इनइक्वालिटीज के। देन सिलॉजिज्म 5 क्वेश्चंस अगेन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये जो मतलब नया लेवल है, जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए टाइप के आ रहे हैं, वो मेंस में ही पूछेंगे, प्री में नहीं पूछ सकते। सो ऐसा नहीं है, हम हर कंसेप्ट को करेंगे, नए टाइप्स को भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो, प्री में ठीक है उतना ज़्यादा चंक नहीं आ सकता, बट स्टिल 5 में से एक क्वेश्चन हो सकता है जो न्यू पैटर्न पे आ जाए, ठीक है, जैसे ओनली अ फ्यू, फाइन, या यू कैन से रिवर्स लॉग्स, इनमें से भी कोई एक आधा क्वेश्चन आपको वो दे सकता है प्री में भी, उसकी मर्जी है, आपको नहीं पता, फाइन। तो हम सारा कुछ कवर अप करेंगे, ठीक है, नहीं प्री में आया तो आपको मेंस में हेल्प कर देगा, इट्स ओके, फाइन, हम करेंगे सारा कुछ, फाइन। उसके बाद देखो सिलॉजिज्म के बाद आप बात करो ब्लड रिलेशंस की या फिर डायरेक्शंस की, यू कैन से कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो इनमें से भी टोटल आपका लाइक 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो सकते हैं, है ना। यहाँ तो 1-2 मार्क्स का ब्लड रिलेशन आ जाएगा, या 1-2 मार्क्स का डायरेक्शंस आ जाएगा, या फिर 1-2 मार्क्स की कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। तो ब्लड रिलेशन में से भी एक आधा क्वेश्चन, डायरेक्शंस में से भी एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में से भी एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। बचा हुआ एक आधा मार्क्स का आपका या तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का आ जाएगा, फाइन। अब ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे पास हैं, डेफिनेटली हैं, तो ये टॉपिक्स भी हमने डेफिनेटली कवर अप करने ही करने हैं, फाइन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है आपके पास, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब अगर मैं आपसे बात करूं IBPS की, IBPS में रीजनिंग जो प्री में आती है वो 35 मार्क्स की आती है, और अगर मैं RRB में देखूं तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब IBPS में पजल और सिटिंग का आप 15 मार्क्स का तो डेफिनेटली लेके चल सकते हो सकता है कभी कभार क्या कर दे वो 20 मार्क्स का ही आपको पजल और सिटिंग दे दे, फाइन। तो इनमें से कम कर देगा, 20 मार्क्स की आपको 4 सेट पजल और सिटिंग के दे देगा, नहीं तो 15 मार्क्स की डेफिनेटली पजल और सिटिंग है, बाकी 20 मार्क्स में से ये पूरा चंक आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि पजल और सिटिंग बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और 40 मार्क्स में से भी यहाँ पे वो क्या कर सकता है 20 अराउंड क्वेश्चंस डेफिनेटली पजल और सिटिंग में से दे सकता है वो आपको, ठीक है। बट यहाँ पे अब बात आती है लेवल कि कौन से लेवल तक के क्वेश्चंस आपने पजल और सिटिंग के करने हैं, बिकॉज बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत फर्स्ट अप रहते हैं कि हाँ जी पता नहीं पजल का क्वेश्चन है होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि प्री में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले ना, इजी टू मॉडरेट होता है। अब मॉडरेट लेवल मतलब कहाँ तक, किस लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं, सो मैक्स टू मैक्स 3 वेरिएबल्स तक कर लो, फाइन, इतनी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब 3 वेरिएबल कैसे, लेट्स से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सपोज उसने लीनियर क्वेश्चन दिया है या फिर सर्कुलर दिया है। अब इसमें वो क्या करेगा, वो कहेगा कि कुछ पर्सन्स हैं इनको सिटिंग कर दो, लीनियर में कर दो या फिर सर्कुलर में कर दो। सेकेंड हो सकता है उनके वो कलर्स भी दे दे कि इनके ये डिफरेंट कलर्स हैं, इनको अलॉट कर दो किसके पास कौन सा कलर जाएगा। थर्ड वेरिएबल तक करना है उसने, सपोज उसने कह दिया कि इनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, वो भी अलॉट करने हैं। सो 3 वेरिएबल्स तक की आपकी ये चीज़ हो सकती है, फाइन। इससे ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल और कि ब्लड रिलेशन भी साथ में कर रहा है, डायरेक्शंस भी चला रहा है, ऐसी वाली चीज़ें आपको मेंस में देखने को मिलेंगी, प्री में नहीं होंगी ऐसा, ठीक है।
तो आपको ये वाली तैयारी भी पूरी करके लेके चलनी है, और ये हम क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर कंसेप्ट को करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। फाइन। अब ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे हमने कोर ली, स्टार्टिंग में हमने इन्हीं पे फोकस करना है, और ताकि मतलब आपका मतलब वो चंक पूरा तैयार हो जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आना और आपके मार्क्स भी आएंगे। रेस्ट आपके ऊपर बचता है कि अब आप अपनी तरफ से कितने एफर्ट करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो। हम अपनी तरफ से 100% देंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे सारे सेशंस अच्छे से अटेंड करने हैं। फ्री सेशन है, आपके लिए कोई हार्म तो होगा नहीं, तो आप आराम से हमारे साथ अपनी तैयारी करो और पेपर को क्रैक करने के लिए बस जुट जाओ। ठीक है, सो मिलते हैं हम 3 अगस्त से अपने सेशंस को जब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास में मिलूंगी मैं भी आपको। टिल देन थोड़ा सा 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, रक्षाबंधन आ रहा है, छोटा सा फेस्टिवल है, मनाओ। ठीक है, खुश रहो एंड बी प्रिपेयर्ड। फाइन, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।